के नाम से मेरा नमस्कार। Dear friends, I greet you all in the name of Jesus. आप लोग कैसे हैं और आपके परिवार कैसे हैं? How are you all and how is your family? ठीक है। I hope and believe that you and your family is doing good. ये समय है कि हम मिलकर उस महान परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Now this is the time we would like to together praise and worship God. मैं सच में परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं आप सभी लोगों के प्रेम के लिए, जिस प्रकार से आप लोग इस प्रोग्राम को सपोर्ट करते हैं और समय निकाल कर आप लोग लाइव आते हैं और देखते हैं, कमेंट्स लिखते हैं। रियली आई एम सो थैंक अबाउट योर लव एंड योर सपोर्ट। I would like to thank God for your love and support and that you give your time, precious time to watch the video, to join with us and to praise and worship God together. इस दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, पैसा है, धन है, संपत्ति है, परिवार है, लेकिन उनके पास समय नहीं है कि जीवित सके। In this world there are many people, those who have money, they have their own things, they have their own businesses, but they have no time to give to God. मेरे अजीजों, My dear friends, इसलिए दुनिया पाप, श्राप, अपराध, गुनाह, बीमारियां बढ़ती जा रही है। that is why when the world, the humans, when they are departed from God, that is why the reason the sins, the wickedness and everything is fully grown in this world. आज इसीलिए मैं कुछ बातें सोच रहा था कि आप लोग के सामने क्या लेकर आऊं, तो परमेश्वर ने मेरे सामने कुछ बातें रखी। सीखने से जीवन मिलता है। And when I was thinking, practicing what to teach to your people, so God think that teach them how to learn. जब हम परमेश्वर की बातों को सीखते हैं तब जीवन में शांति और समाधान आता है। When we learn the word of God, then there is peace and mercy in our life. आइए दोस्तों, हम लोग प्रार्थना करके इस प्रोग्राम को शुरू करें। Come, my dear friends, let us all pray and start the program. सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। Almighty God, we praise and thank you. प्रभु जी, इस समय हम तेरे शरण में आते हैं, तेरी उपस्थिति में आते हैं। Father God, we come to your presence at this moment, to your presence, Lord. आपके पवित्र वचन में इस प्रकार से लिखा है, For there is written in your holy words, जब तू प्रार्थना करेगा तो मैं तेरी प्रार्थनाओं को सुन लूंगा। whenever you're gonna pray unto me, I'm gonna listen to your prayers. पिताजी, इस रात्रि समय हम तेरे शरण में आते हैं Father God, at this night moment, we come to your और presence. प्रभु, जितने लोग इसमें सुबह के समय देख रहे हैं, And Father, those who people are watching this program in their countries at the morning time, हमारे भारतवर्ष में रात के समय प्रभु इस प्रोग्राम को देख रहे हैं। and in our India, people those who are watching this at the night time. पिताजी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। Father God, I thank you for this. तेरे पवित्र वचन में इस प्रकार से आपने कहा है, For you said in your holy words, Father, अब्राहम जिसे तू आशीर्वाद देगा, यानी कि जो व्यक्ति तुझे आशीर्वाद देगा मैं उसे आशीषित कर दूंगा। Lord, you said to Abraham that Abraham who is gonna bless you, I'm going to bless him. प्रभु, ये सब लोग तेरे सेवक के लिए परमेश्वर सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, प्रेम करते हैं। पिताजी, इन तमाम लोगों को आप आशीषित करें। Lord, these people, they support, they love, they join, they are standing with your servant. Lord, के साथ प्रार्थना में एक होने के लिए अपने सुबह के समय, इस 4:30 बजे के समय, चाहे फिजी है, ऑस्ट्रेलिया है, चाहे परमेश्वर न्यूजीलैंड है, अर्ली मॉर्निंग दे आर वेक अप एंड स्टेइंग विद द लॉर्ड प्रेयर। Lord Father, they're coming, they're giving their precious time in the early morning and in the evening time, giving their precious time to praise and worship you and for your servants as well. प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं, Father God, we pray जो that भी लोग इस प्रोग्राम को देखते हैं उनके जीवन में, तमाम लोगों के जीवन में तेरी आशीष आने पाए। people, those who are watching this program, let there be your blessings in their life. तेरी कृपा इनके जीवन Let में there बनी be your रहने पाए, kindness in their life. तेरी आशीष इनके जीवन में आने Let your पाए। blessings be in their life. प्रभु, इस समय हम प्रार्थना करते हैं हमारे भारत के राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद जी के लिए परमेश्वर। Father God, at this moment we pray for our country's president, Sri Ramnath Kovind. प्रभु जी, आपकी दया और आपकी आशीष प्रभु तेरे दास के जीवन में बने रहने Father पाए। God, let your mercy and kindness and blessings be in your servant's life. प्रभु, हमारे देश के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए हम प्रार्थना करते हैं, प्रभु आप हमारे प्रधानमंत्री के जीवन में तेरी आशीष बनाए रखें। Father God, we pray for our country's prime minister. Lord God, you let your blessings be in their life. प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं देश के अंदर प्रभु रहने वाले हर एक राज्य के चीफ मिनिस्टरों के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। Father God, we pray for our country's each and every chief ministers. पिताजी, आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर आपके प्रभु जी जगन मोहन रेड्डी जी के लिए, और दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल जी के लिए, महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर, प्रभु तमाम राज्य के हर एक चीफ मिनिस्टरों पर तेरी दया और तेरी
तेरी कृपा बनी रहे प्रभु। Father God, let there be your kindness and blessings in every regions, every state to chief ministers. होने दे परमेश्वर पिता, तमाम एमएलएस के लिए, एमपीस के लिए, काउंसलर के लिए हम प्रार्थना करते Father हैं। God, we pray for all the MLAs and MPs and for all the other councillors. पिताजी तेरी दया और तेरी आशीष तेरे लोगों के जीवन में बनी रहने Father God, पाए। let your mercy and kindness be in your people's हम life. प्रार्थना करते प्रभु देश की आर्मी के लिए प्रभु, जो भारतवर्ष के लिए प्रभु अपनी जान कुर्बान करते हैं प्रभु, हम प्रार्थना करते तेरी सुरक्षा और तेरी सामर्थ्य परमेश्वर पिता हमारे देश के आर्मी पर होने पाए। Father God, we pray for the armed forces and for all the army men of our country and every country, Lord, for they risk their life, they give their life, and Jesus, they protect, they guard our countries. Lord, let your blessings be with them. प्रभु हम प्रार्थना करते देश के पुलिस के लिए, चाहे वो ट्रैफिक पुलिस हो प्रभु, इंटरनली पुलिस हो, हर एक राज्य के पुलिस के लिए हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, आपकी कृपा और आपकी आशीष प्रभु हमारे होम मिनिस्टर पर और तमाम पुलिस बल पर, तमाम सेना के प्रमुखों पर होने पाए प्रभु। Father God, we pray for all the police members, they leaving their houses behind, they coming forward for the people, for guarding and protecting them, and Father, for all the other policies, for all the home ministers, and for everyone, Father God, we pray, Lord, you be with them. Jesus, you bless their lives. हम प्रार्थना करते हैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हमारे देश के डॉक्टर्स के लिए प्रभु, जो परमेश्वर पिता उनके सहकर्मी हैं प्रभु, जिनके वजह से प्रभु आज 6 लाख लोग परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस में होने के बावजूद भी वो लोग प्रभु पीछे नहीं हट रहे हैं, वो लोगों की सेवा में प्रभु अपनी जान तक कुर्बान कर रहे हैं। हम प्रार्थना करते प्रभु डॉक्टर्स, उनके परिवारों को प्रभु आप संभालें, आप सुरक्षा दे दीजिए परमेश्वर। And Father God, we pray for all the doctors, Lord, even though there are 6 lakh plus cases of corona positive in India, and Father God, but still, Father, they're coming forward, risking their life. And Jesus, they're giving the treatment, they're doing their best. Lord God, you bless them, you be with them. पिताजी हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के तमाम उन सामाजिक कार्यकर्ताओं के लिए प्रभु, तमाम उन एनजीओ या सोसाइटीज बनाकर प्रभु जी लोगों की सेवा में लगे हुए हैं, तमाम में तेरी कृपा बना के रख। Father God, we pray for all the social and religious workers and leaders, Father, for their helping, they coming forward for the people's help and need. Lord, let your blessings and kindness be with them always. हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, धार्मिक लोगों के लिए, चाहे वो मंदिर के पुजारी हो या परमेश्वर मस्जिद के मौलाना जी हो या परमेश्वर गुरुद्वारा के प्रभु संत हो परमेश्वर, या चर्च के फादर्स हो, हर एक जाति धर्म के प्रभु लीडरों को और उनकी अपनी परमेश्वर धर्म पीठों पर तेरी दया हो, ताकि समाज को और अच्छी रीति से वो लोग गाइड कर सके और ये भारतवर्ष परमेश्वर फिर से एक विश्व गुरु के रूप में बना रहे प्रभु। And Father God, we pray for all the religious leaders and for every other leaders. Father God, we pray you bless them. Father, you be with them. And Jesus, Lord, let they come forward in the same way in every problem and situation. And Jesus, you help us India to become first once again. पिताजी हम प्रार्थना करते हैं भारतवर्ष के हर एक उस नागरिक के लिए परमेश्वर पिता, हर एक वो जिम्मेदार नागरिक के लिए प्रभु, हर एक उस गरीब नागरिक के लिए परमेश्वर पिता, इस कोरोना वायरस के चलते हुए जो लोग परेशान हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, समस्याओं में हैं, पिताजी उन पर तेरी दया और तेरी आशीष होने पाए प्रभु। And Father God, we pray for all these citizens of this country, and Father, for every responsible citizen, Father, Lord God, we pray that let your kindness and let your blessings be with them. Jesus, Lord, you stand with them, and Jesus, Lord, you protect them. सर्वशक्तिमान यीशु हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, Almighty God, we pray unto हमारे you. देश की आर्थिक स्थिति को ठीक करिए परमेश्वर। Correct our financial condition of our country. जो लोग परमेश्वर पिता इस कोरोना वायरस के वजह से परेशान हैं, उन पर तेरी दया कर परमेश्वर, और जल्द से जल्द ठीक हो जाए। And Father God, we pray those who people are suffering with this coronavirus, Lord, let your blessings be with them so that they will be healed and Father treated soon, and Father be healed in your name. आप मदद करें परमेश्वर, Jesus, you help. सहायता करें You परमेश्वर। support, Father. हम प्रार्थना करते हैं न्यूजीलैंड के लिए, फिजी के लिए, ऑस्ट्रेलिया के लिए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं यूएसए के लिए, कनाडा के लिए परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं श्रीलंका के लिए परमेश्वर, पाकिस्तान के लिए प्रभु, दुबई के लिए प्रभु, और नेपाल के लिए परमेश्वर, भूटान के लिए परमेश्वर, तमाम एशियन कंट्रीज के लिए प्रभु, तमाम यूरोपियन कंट्री के लिए, तमाम अफ्रीकन कंट्रीज के लिए, इन तमाम देशों के राष्ट्रपति पर, प्रधानमंत्रियों पर, पुलिस पर, आर्मी पर, डॉक्टर पर, तमाम उन सोशल वर्कर पर प्रभु, तमाम वो रिलीजियस वर्कर पर तेरी दया और तेरी आशीष परमेश्वर हर एक नागरिक पर प्रभु इस भूमंडल पर होने पाए। Father God, we pray for all these countries, and Father God, once again we pray for all the
doctors, for all the police, for all the leaders, and for all the prime ministers, for all the presidents, councillors, MLA and MPs, and everyone, Jesus, let there be your mercy, blessings in their life. You be with them. पिता, इस देश में, इस भूमंडल में शांति समाधान होने पाए, लोग एक दूसरे के साथ मिलकर रहे प्रभु, एक दूसरे के दुश्मन नहीं प्रभु, भाईचारा बनने के लिए सहायता कर, पूरे विश्व में शांति शक्तिमान परमेश्वर आपकी स्तुति और धन्यवाद करते हैं। इस प्रार्थना को यीशु के पवित्र नाम में मांगते हैं। Almighty God, we praise and worship you. This prayer in the name of Jesus we ask. आमीन Amen. आमीन आमीन। थैंक यू दोस्तों, आइए हम लोग मिलकर कुछ गीत गाएं और परमेश्वर की स्तुति करें। Thank you, dear friends. Come, let us all sing song and उस praise महान and worship परमेश्वर की God. जय जयकार करें, Sing joy unto that great God. उस महान परमेश्वर की आराधना करें। Let us all praise that great God. धन्यवाद के योग्य वो परमेश्वर है, उसकी महिमा को गाए हम लोग। For he is worthy of thanksgiving. Let us all praise his worship. धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, तेरी स्तुति हो। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरी स्तुति हो। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। जब मैं निराशा में था मेरे यीशु, तूने आशा दिया। जब मैं निराशा में था मेरे यीशु, तूने आशा दिया। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। हालेलुया, धन्यवाद यीशु तेरा, धन्यवाद यीशु तेरा। प्रिय दोस्तों, आप सभी को मैं नमस्कार करता हूं प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में। Dear friends, I welcome you all in the holy name of Jesus. और ये समय है कि हम मिलकर परमेश्वर की स्तुति और धन्यवाद करें। Now this is the time we would like to together worship and praise और God. कुछ बातें जो परमेश्वर के कलाम में है उसे हम सीखने की कोशिश करें। And we will try to learn some things which is in the Holy Bible. परमेश्वर के पवित्र वचन के अंदर बहुत सी अच्छी बातें लिखी हुई जिसे हम लोग अपना सकते हैं और प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। In the Holy Bible, there are many things written which we can learn and accept in our life. जिस प्रकार से आज का विषय मैं बताने जा रहा था कि सीखना, The way I was about to tell you, exhort you about learning. स्वयं परमेश्वर अपने लोगों के लिए यह बातें लिखी है। Now Jesus himself, God himself wrote these things for his यदि यहाँ पर people. हम लोग व्यवस्था विवरण की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 10 पढ़ते हैं तो, If you read Deuteronomy chapter 4 verse 10, क्योंकि यहाँ पर कहता है कि विशेष करके उस दिन की बात जिसमें तुम
होरेब के पास अपने परमेश्वर यहोवा के सामने खड़े थे, जब यहोवा ने मुझसे कहा था उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिसमें वो सीखे, ताकि जितने दिन वो पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी ये सिखाएं। Especially concerning the day you stood before the Lord your God in Horeb, when the Lord said to me, gather the people to me, and I will let them hear my words, that they may learn to fear me all the days they live on the earth, and that they may teach their children. ये बातें तब है जब लोग मिस्र देश से निकलकर कानान देश के अंदर आ गए। Now, this is what happened when the Israelites came out of the slavery from Egypt and were in Canaan. यानी कि उस बॉर्डर पर पहुंच गए और पहुंचने से पहले ये निर्देश मूसा तमाम इजराइलियों को दे रहा है। Now they are at the border of the blessed country Canaan, and Moses is giving these orders, instructions to the people. मूसा कह रहा सुनो मेरी बात, समझने की कोशिश करो। जिस दिन होरेब पर्वत के पास में परमेश्वर ने जो बातें मुझसे कही थी वे सारी बातें मैं तुम्हारे सामने रख रहा हूँ। Now Moses is telling to the people that listen, especially the day when we people were in the mount of Horeb. There God spoke these words to me. यानी कि जब तुम परमेश्वर के कलाम को सीखोगे तभी तुम उसका पालन कर पाओगे। Which means when you will learn the word of God, then only you're gonna obey it, walk according to it. यानी कि परमेश्वर Which means God केवल ये नहीं कि केवल सुनने के लिए कहता है, not only says only to hear, या कहता कि तुम्हारे बाल बच्चों को भी लेकर आओ ताकि वो मेरी बातों को सुने और सुनने से उनके जीवन में आशीष आएगी, वो बेमौत नहीं मारे जाएंगे। Now he says that not only for hearing, but let your children also come unto me, let them hear me what I am saying, and because of when they learn it, when they will hear this, they will not die according to their diseases or something else. मेरे दोस्तों, आज हमारे बच्चों को हम लोग बहुत सी बातें सिखाने की कोशिश करते हैं, My dear friends, today in these days we try to teach our children a lot of things, ताकि हमारे बच्चे पढ़े लिखे बड़े बन जाए, देश में जाए, विदेश में जाए, घर छोड़कर जाए, दूसरे घर में जाए। बहुत सी शिक्षा को हम देना चाहते we हैं। try to give them many teachings and let them go to foreign countries, other countries to do their work, to stay out of their houses and to do a lot of things. क्या हम उन बच्चों को संसार की शिक्षा के साथ, दुनिया की शिक्षा के साथ, दुनिया के रीति रिवाज के साथ, क्या हम उन्हें जीवित परमेश्वर की बातें भी, जीवित परमेश्वर के नियम भी उन्हें क्या सिखाते हैं हम? So are we also teaching them the word, the law of God to them with all the worldly things which what we are teaching यहाँ them? परमेश्वर का कलाम Here the कहता word है, of God says, क्या कहता है? सुनो मेरी बात। मूसा कहता सुनो मेरी बात, तुम सब लोग मेरे पास में आओ। जो जो बातें मैंने परमेश्वर से सुनी है ये बातें मैं तुम तक पहुंचाना चाहता हूँ। Here Moses says that listen to my words, hear to me. The Lord, whatever He spoke to me, I want to keep it in front of you to teach you people. और यहाँ कहता है कि जब तुम परमेश्वर की बातों को सीखोगे तो तुम बेमौत नहीं मारे जाओगे। And it says that they may learn to fear me all the days that they live on the earth, and they may also teach it to their children. यानी कि मेरे अजीजों, Which means, my dear friends, परमेश्वर की बातों का आदर करना सीखना जरूरी है जीवन we के need to अंदर। learn to respect the word of God in our life. आज कितने ऐसे परमेश्वर के दासों के बेटे और बेटियां हैं, Today there are many servants of God, children's daughters and sons. कितने ऐसे विश्वासियों के बच्चे हैं। There are many believers and children. माता पिता तो चर्च में जा रहे हैं, बच्चे लेकर पिक्चर देखने जा रहे हैं। The parents are going to attend the church, but the children are attending the movies. परिवार तो जा रहा है प्रार्थना करने के लिए, लेकिन बच्चे अपने दोस्तों के साथ में पिकनिक मनाने जा रहे हैं। The family is going to attend the church, but the children, they are just going to hang out with the friends. माँ तो रो रो के प्रार्थना कर रही है, परमेश्वर के वचन को पढ़ रही है चर्च में, लेकिन बच्चे दोस्तों के साथ में इधर उधर की बातों में लगे हुए हैं। Mother is crying, weeping in front of God, praying to God, but the children, they are
in the worldly concerns. यहाँ पर इसीलिए मूसा कहता है That is why Moses said, तुम अपने बाल बच्चों समेत आने की जरूरत है। you need to come to the Lord, hear to the Lord with your children as यानी कि well. आप अकेले नहीं, Not you alone, आपके परिवार के साथ में। but with your family. इसलिए यहोशू बात कहता That है, is why Joshua says one thing. मूसा के पास में बैठकर सीखने वाला यहोशू ये बातें कहता है, चाहे तुम लोग मेरी बात को मानो या ना मानो, यानी तुम लोग परमेश्वर की शिक्षा को स्वीकारो या ना स्वीकारो, लेकिन मैं और मेरा घराना मिलकर उस परमेश्वर की स्तुति निरंतर करते रहेंगे। That is why the great leader Joshua, when he used to sit near Moses, he used to learn, get teachings from him, and he says this word that if you people will listen or not to the word of God, if you obey him or not, that doesn't matter to me, but I and with my household, with my family will worship and will praise and worship God, will learn to God. यानी कि मैं अपने परिवार के साथ, Which means I with my अपने family, घराने के with साथ, my household, अपने कुटुंबियों के with my साथ, relatives, मेरे फैमिली मेंबर को लेकर मैं परमेश्वर की स्तुति करूंगा। I will take my family members and praise and worship God. तुम आना चाहो तो आइए, If you people want to come, तुम then you नहीं come. आना चाहते तो तुम्हारी मर्जी If है। you do not want to obey, it's up to you. मेरे अजीजों, My dear friends, प्रभु की बातों का आदर करना जरूरी है। respect the word of God. It is necessary. परमेश्वर के वचन को समझना जरूरी It है। is important to understand the word of God. आइए मैं दूसरी बात आपको बताना चाहता हूँ। Come, let me tell you the second पहली thing. बात यह है कि परमेश्वर का आदर करना सीखे, The first thing is that you learn to respect God. यानी कि परमेश्वर के वचन को सुनने से हम प्रभु का आदर करते हैं। Now, when we listen the word of God, through this we respect God. इसलिए तो आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। यूहन्ना की पुस्तक अध्याय 1 के वचन 1 में कहता है, यानी कि वचन ही परमेश्वर था। That is why in the Gospel of John chapter 1 verse 1 it says, in the beginning was the word was with God, and the word was itself God. यदि हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं, If we see in the Holy Bible, यदि हम लोग होशे की पुस्तक अध्याय 6 के वचन 6 में पढ़ते हैं तो and if we read Hosea chapter 6 verse 6, दूसरी बात ये कहता है, second thing over here it दूसरी says, बात हमें समझने की जरूरत है, second thing which we need to क्योंकि understand, परमेश्वर कहता, क्योंकि मैं बलिदान से नहीं स्थिर प्रेम से ही प्रसन्न होता हूँ और होम बलियों से अधिक यह चाहता हूँ कि लोग परमेश्वर के ज्ञान को सीखे। for I desire mercy and not sacrifice, and the knowledge of God more than burnt offerings. यानी कि परमेश्वर Which means आपके God, बलिदानों को, not your offerings, आपके ऑफरिंग को, not your burnt आपकी offerings, चीजों को, not your things. आपके बलिदानों को नहीं चाहता। He does not want your burnt offerings. मेरे अजीजों, My dear friends, कभी आप सोच रहे होंगे, Maybe you're thinking, मैं तो दशमांश देता हूँ, I'm giving the मैं तो tithe, ऑफरिंग देता I'm हूँ, giving the offering, मैं तो चर्च में जाता I am हूँ, attending the मैं church, तो गरीबों की मदद करता I हूँ, help the poor मैं तो people, उसकी मदद करता हूँ, I help that मैं इसकी person, मदद करता I हूँ, help this person. शायद प्रभु मुझे क्षमा करेगा। Maybe God will forgive me. नहीं मेरे अजीजों, No, my dear friends. बलि चढ़ाने से श्रेष्ठ है कि परमेश्वर की बात को सुनना। Now, listening and obeying the word of God is more better than burnt offerings. इसलिए परमेश्वर के कलाम में लिखता That is why है, in the Holy Bible it is यानी कि written, परमेश्वर आपके बलिदानों से देखकर प्रसन्न नहीं होता। now God is not happy or pleased with your burnt offerings. दोस्तों, वो परमेश्वर आपकी नम्रता, दीनता, आपके ओबीडियंस जो आप सुनते हो परमेश्वर की बात को, My dear friends, God desire not your sacrifices but your mercy unto the poor, the humbleness, the meekness. यहाँ कहता है, Here it says, क्योंकि मैं बलिदान नहीं चाहता, for I desire not mercy, मैं स्थिर प्रेम को चाहने वाला परमेश्वर हूँ। for I desire not sacrifice but mercy and the knowledge of God more than burnt offerings. यदि हम लोग मत्ती रचित शुभ समाचार की पुस्तक अध्याय 9 का वचन 13 पढ़ते हैं तो If we read Gospel of Matthew chapter 9 verse 13, क्या कहता है, इसलिए तुम जाकर उसका अर्थ सीख लो, मैं बलिदान नहीं परंतु दया को चाहता हूँ, क्योंकि मैं धर्मियों के लिए नहीं परंतु पापियों को बुलाता हूँ। but go and learn what this means. I desire mercy and not sacrifice, for I did not came to call the righteous but sinners to repentance. मेरे दोस्तों, My dear friends, वे स्वर्ग का the परमेश्वर, heavenly Father, वे दयालु that परमेश्वर, kind God, वे पराक्रमी परमेश्वर, that
God who does good वो works, आपसे और मुझसे आज एक इच्छा रखता है, He desires one thing to us ताकि today, हम दया करना that सीखें, we will be merciful, हम लोगों के दुखों को समझना that सीखें, we'll learn to understand people's लोगों sorrows, की जरूरत क्या उस जरूरत को जानना सीखें। we learn to understand people's needs, ये नहीं कि बड़े बड़े काम करके अपने गुनाह को छुपाएं, not by doing great works and hiding our sins. दूसरों का लाख रुपए का धोखा दे दिया और 1000 रुपए बांट कर कह रहे कि मैं धर्मी हूँ। Now you're cheating someone and getting 1 lakh and then helping somebody with 1,000 rupees and saying, I'm a great person. मेरे अजीजों, My dear friends, परमेश्वर का कलाम ये कहता है, Word of God it वे says, बलिदान को नहीं, He not the वे sacrifices, दया को चाहने वाला He is the परमेश्वर God who है। desires mercy. आइए हम लोग तीसरी बात की ओर Come, जाएंगे। let us all go to the third प्रभु one. यीशु मसीह तीसरी बात सीखने के लिए कहता है। Jesus Christ says third thing to learn. पहली बात हम क्या सुना? The first thing which we परमेश्वर learn, के वचन का आदर करना now to सीखे। respect the word of God, we need to दूसरी बात learn. हमने सीखा The third thing we कि learned, हम दया करना सीखे, we need to learn it to be बलिदान को merciful, नहीं, not burnt offering, बड़ी बड़ी बातें नहीं, not big flattering words. हम परमेश्वर की दया को लोगों के प्रति दिखाने की कोशिश करें। We should try to show the mercy, the love of God to यदि हम लोग others. मार्कुस की पुस्तक अध्याय 13वें अध्याय का वचन 38वें पद में पढ़ते हैं तो If you read in the Gospel of Mark chapter 13 verse 28, यहाँ पर एक बात इस प्रकार से कहता है, here it says, यदि हम पढ़ते हैं तो अंजीर के पेड़ से ये दृष्टांत सीखो, जब उसके पत्ते डाली कोमल हो जाती और पत्ते निकलने लगते हैं तो तुम जान लेते हो कि ग्रम काल का निकट है। इसी प्रकार से जब तुम इन बातों को होते देखो तो उन्हें जान लो कि यह निकट है वरन दूर ही पर है। Now, learn this parable from the fig tree. When its branch has already become tender and puts forth leaves, you know that summer is near. So you also, when you see these things happening, know that it is near at the doors. यानी कि मेरे अजीजों, Which means, my dear इंसान इतना friend, ज्ञानवान है, the human is intelligent much. इंसान के पास ईश्वर ने इतना ज्ञान दिया है, Well, God gave this brain to वे human चीजों को देखकर समझ जाता है कि अब आगे क्या होगा। that he can see the things, he can calculate what is going to happen now. यानी कि वो Next. पेड़ों को देखकर, सितारों को देखकर, सूरज को देखकर, वातावरण को देखकर बताने लग जाता है कि अब क्या होगा। Which means the human, the man, can see the things, he can see the weather, climate and everything and can say that what is going to happen next. मेरे दोस्तों, My dear friends, हाँ, प्रभु का वचन कहता है, Here the word of God तुम says, अंजीर के पेड़ से इस बात को सीख लो। now you learn this parable from the fig tree. यानी कि जिस प्रकार से उसके पत्ते आते हैं तो तुम समझ जाते हो कि गर्मी का काल आने वाला है। The way there is the branch becoming tender and puts forth the leaves, then you know that the summer is near. इसी प्रकार से तुम्हें परमेश्वर की बातों को, परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के भय को, यानी परमेश्वर के आगमन को समझने की जरूरत है। The same way we need to learn to understand the God's kingdom which is at hand to come. यानी प्रभु यीशु मसीह नजदीकी में Which है। means God is going to come soon. परमेश्वर अब दूर नहीं Which है, means now God is not far away from आप us. मेरे नजदीक में है। He is near. मेरे अजीजों, My dear friends. हम चौथी बात की ओर जाएंगे। We'll go to fourth thing. यहाँ पर पहला कुरिन्थियों की पुस्तक अध्याय 4 का वचन 6 में एक बात कहता है। Epistle to 1 Corinthians chapter 4 verse 6. यहाँ पर इस प्रकार से परमेश्वर का कलाम कहता है 4 के 6 में, The word of God, it is written, we will read 1 Corinthians chapter 4 verse 6. हे भाइयों, मैं इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा का दृष्टांत की रीति पर की है कि इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि ये सीख लो कि हुए में आगे ना बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। Now these things, brethren, I have figuratively transferred to myself and Apollos for your sake, that you may learn
in us not to think beyond what is written, that none of you may be puffed up on behalf of one against the other. यानी कि Which means वे एक दूसरे का विपरीत नहीं है, they are not against one another. वे एक दूसरे का विरोध नहीं है। That is not against one वो another. ये कहता है It says, आप हमारे जीवनों से इस बात को सीख सकते हैं, now you can learn the things from our life. हमने अपना जीवन तुम लोगों के सामने किस प्रकार से प्रस्तुत That किया है। how we presented our life in front of you people. इसलिए That is why पौलुस कहता है Saint Paul says, तुम आपस में क्यों लड़ते हो, why do you fight among आपस में एक you people? दूसरे का विरोध क्यों करते Why हो। are you against one another? तुम में से एक कहता मैं पौलुस का हूँ, दूसरा कहता अपोल्लोस का हूँ। One among you says that I'm from Paul, and the another one says that I'm from Apollos. मेरे अजीजों, My dear friends, यहाँ कहता हम दोनों ने ही परमेश्वर के प्रेम को तुम्हारे सामने रखा है। it says that we both figuratively transferred the love of God in each of you. इसलिए परमेश्वर का वचन कहता That है is why the word of God says, क्योंकि तुम अपने आप को परमेश्वर के भक्त जानकर अपने जीवन को पवित्रता की ओर चलाओ। that you, knowing that you are the worshippers, the devotee of God, now spend your life according to this. यानी कि जब आप प्रभु यीशु मसीह के शरण में आते हैं, When you come to the presence of परमेश्वर के Jesus, वचन को मानते when हैं, you accept the word of प्रभु के God, शरण में जब आ when जाते you come हैं, to the presence of तो आपकी God, और मेरी जिम्मेदारी बन जाती है then it is our कि responsibility. मैं भी एक परमेश्वर का बेटा हूँ, बेटी हूँ, मेरी जिम्मेदारी है, मुझे एक एग्जाम्पल अपने समाज के लिए, लोगों के लिए बनने की जरूरत That I है। am also the daughter, the son of Christ, the children of God, and I also need to become an example for the society, for the people. बहुत से लोग ये सोचते हैं Many people think, मुझे क्या पड़ी है, what do I have to do with मुझे this? क्यों दिखाना है, Why should I मैं तो show? अपनी जिंदगी जीऊंगा। I love my life. याद रखिए, Remember, दुनिया में परमेश्वर कुछ लोगों के विशेष काम के लिए भी भेजता है। well, God has sent people for a particular thing on this world. मैं ये कहना चाहता I हूँ, want to say you. आप परमेश्वर की पहचान Now हैं, you are the image of आप Christ. परमेश्वर की पहचान है, इसलिए आप परमेश्वर की पहचान को बढ़ाइए Now अपने you जीवन are the से। likeness of God. So you grow this image, this likeness in your life. Show this to people. आप दुनियावी लोग नहीं है जो दुनिया की बातों में लग जाएं। Now you are not the worldly people to be in worldly conscience. यदि हम लोग If we people तीतुस की पुस्तक